Hey guys, so moving on to the next question. Can array 5 is equal to not? So K N O T slash, right? Let's suppose 100, 101, 102, 103, and this is 104, right? And I declared a pointer ptr and a variable im, then one more ptr st star ptr1. Now ptr is equal to address of arr1. This is array by 0, this is array by 1. So this address is 101. So your ptr is pointing at 101, and ptr1 is equal to ptr plus 3. So ptr1 is equal to ptr plus 3. So ptr is pointing at 101, plus 3 means plus 1, plus 2, plus 3. Right, it is pointing at what? It is pointing at 104 address. And let's suppose just change 104 star ptr. ptr1 is equal to ptr plus 3 plus 1 plus 2 plus 3. Right, so it is pointing at null. So just change this as ptr plus 2. ptr plus 2. Then there will be issue because the size of only 5 character. But if you like replace this null, there is nothing to store for the null character. So again, it will print the absurd garbage value. So I am writing only ptr plus 2. So plus 1, 102, plus 2, 103. So your ptr 1 is pointing at 103. I am again repeating. See, ptr is equal to address of arr1. arr1 is nothing but n. Address of n is 101. So your ptr is pointing at 101. ptr1 is equal to what? ptr plus 2. ptr is pointing at 101 plus 2 plus 1 plus 2 is 103. So ptr is pointing at what? 103. And star of ptr1 you are changing it to 101. So star of ptr1 is 101. 101 is what? 97 is small a. Then 98, 99, 100, 101. So B, C, D, E. So this gets replaced with small e. Right. So this is small e. Now this changed to small e. Now you are printing I equals to 0. 0 less than 4. Condition true. You are printing star ptr. So where ptr is pointing at your 101, and star of 101 is n. So first it will print what? N. Then I gets incremented. I becomes 1. 1 less than 4 condition true. Though it is ptr plus plus, right? So now ptr points to 102. So star of 102 is what? O. I becomes what? 2. 2 less than 4 condition true. So again ptr moves to what? This position 103 star is what? E. So this will print E, right? Then again I becomes 3. 3 less than 4 condition true. So again it will print what? Star ptr, and this is what? Null, right? So it will print null. 0, 1, 2, 3. So first it is printing your n, then it is printing O, then it is printing E, then it is printing null, right? This is the question. But logic is this one. Now this next question is pretty important. Now see, this a is your integer, right? And this ptr is a pointer to character. ptr is pointer to character. And what you are doing, you are trying to assign the address of a, which is an integer, to your char pointer, right? So this is pretty amazing question. Now what you do in such a case? In such a case, there is a concept called as little endian and big endian, right? So in your memory you have this two representation, little endian and big endian. So little endian में क्या होता है? Basically आप number का binary representation निकालते हो, because ये integer लेता है 4 byte character लेता है 1 byte. तो कैसे करोगे? Because this ptr can only point to a 1 byte, but this integer which is it is holding the address of integer which is 4 byte. तो हम क्या करते हैं? इस 130 का binary निकालते हैं. चलो इस 130 का binary निकालते हैं. तो मैं 130 का binary निकालता हूँ 265 0 232 1 216 0 280 240 220 210. So how many bits? 4 8 bits, right? But we are normally writing it into
I'm assuming it is just a 16-bit architecture where the size of integer is of 2 bytes. So I'm just simply representing in 2 bytes. So in 2 bytes, how you going to represent this? So first you will write 1 0 0 0, then 0 0 1 0. Now in little endian what happens कि जो लोअर आपकी बाइट्स होती है, लाइक इसके बाद 8 zeros और आते हैं, ठीक है, तो उन 8 zeros को उठा के मेरे को पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। जो लोअर जो आपकी होती है बिट्स होती है, लोअर बिट्स होती है, वो पहले स्टोर होती है, तो वो पहले 8 बिट्स आपकी स्टोर होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बाइट इसको माना जाएगा और एक बाइट इसको माना जाएगा, ये आपकी 2 बाइट। तो इन लिटिल एंडियन जो नीचे की बाइट्स, नीचे की बिट्स होती हैं, उनको मैं पहले स्टोर करता हूँ और बाकी जो आया है मैं उसको करता हूँ बाद में स्टोर। बिग एंडियन में जिसका रिवर्स होता है, पर मोस्ट ऑफ आर्किटेक्चर दे फॉलो दिस लिटिल एंडियन, ठीक है। तो लिटिल एंडियन में क्या होता है, जो लोअर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है उनको मैं उठा के पहले स्टोर करता हूँ, राइट। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन 130 का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो अब इसमें क्या है, अब तुम ये बताओ, अब जो ये ptr जो पॉइंटर है, ठीक है, ये आपका सिर्फ इस बाइट को पॉइंट करेगा, इस बाइट, ठीक है, और मैं स्टार लगा के इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है ये प्रिंट क्या करेगा, ये 130 प्रिंट करेगा? नहीं, ये 130 प्रिंट नहीं करेगा। चेक करो, इसकी जो लास्ट बिट है वो क्या है, लास्ट बिट आपकी क्या है 1, साइन बिट क्या आपकी 1, तो यानी ये नंबर जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। तो मेरे को उसको निकालना कैसे होता है, मेरे को उसको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा कैसे, तो ये नंबर क्या है, पहले मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये नंबर आया मेरा 1 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, तुम्हें पता है लास्ट अगर बिट 1 होती है तो नंबर नेगेटिव होता है। तो अगर मैं वो नंबर निकालूंगा कैसे, मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो मेरे को डिजिट को फ्लिप करना पड़ता है। इसको ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 1 0 0 सॉरी 0 1 1 1 एंड दिस इज योर 1 1 0 1, राइट। अब मेरे को इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो अगर इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ तो 1 1 क्या हो गया 10 0, ठीक है। ऊपर गया कितना आ गया 1, ये आ गया 1 1 1 1 1 0। तो ये आंसर कितना हो गया, इसको ऐड करना जरा, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8 0 1 2 3 4, ये हो गया 16 5 हो गया 32, ये कितना हो गया 64। तो हम इनको ऐड करूँगा 64 32 कितना होता है 96 96 4 कितना हो गया 100, ये हो गया 110 और 16 ऐड करूँगा तो 126। तो आंसर इज -126, ठीक है। बहुत ही अजीब सा आंसर है, पर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिवाइड बिट करा, देखो ए आपका एक इंटीजर है, पीटीआर आपका पॉइंटर टू कैरेक्टर है। अब इस पॉइंटर जो कि कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है उसमें मैं इंटीजर का एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। तो जब उसमें इंटीजर का एड्रेस असाइन करूँ, उसको मैं टाइप कास्ट करने का मतलब क्या है कि वो मेरे को 1 बाइट को पॉइंट करेगा, ठीक है, 1 बाइट को पॉइंट करेगा। तो मेरे को इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा, कुछ और तो चारा नहीं है, बिकॉज 4 बाइट को आप स्टोर नहीं करा सकते, पॉइंटर 4 बाइट को आपको स्टोर नहीं करा सकते उस पॉइंटर में जो 1 बाइट को पॉइंट कर रहा है। तो पहले तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में निकालना पड़ेगा, फिर आपको जो 1 बाइट है वो आपको लोकेट करनी पड़ेगी इस पीटीआर, तो पीटीआर उस 1 बाइट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी कंसेप्ट होता है लिटिल एंडियन का मतलब पहली 1 बाइट को तुम बाद में स्टोर कराते हो और नीचे की 1 बाइट होती है उसको आप पहले स्टोर कराते हो, ठीक है। तो नीचे की जो 0 0 थी वो पहले स्टोर हुई और ये बाद में स्टोर हुई। अब तुमने सिंपल ये प्रिंट किया स्टार पीटीआर की पीटीआर पॉइंट कर रहा है इसके एड्रेस को, इसका स्टार को, तो ये वैल्यू आएगी तो इस वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में नंबर क्या आ रहा है 1, तो एक नेगेटिव नंबर है। पता करने के लिए आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा कि वो नंबर क्या है। तो नंबर क्या है 126। तुम इस कोड को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर तुमसे पूछो इसका आंसर क्या होगा, चलो इस कोड को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मान लो यार ये 130 ना होते, अगर ये नंबर आपका नंबर होता सपोज 320 होता। एक बात कहता हूँ, अगर मान लो नंबर ये 320 होता और मैं प्रिंट कराता सपोज PTR+1, और अगर मैं प्रिंट कराता PTR+1 नंबर मेरा है 320, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा 21601280140, सॉरी दिस इज 0 0 0 0 2 10 0 2 5 0 2 2 1 2
1 0, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 9 बिट्स है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा कि पहले जो ये 8 बिट्स हैं इनको आपको पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 0, ठीक है। आपने इनको यहाँ पे पहले स्टोर कर लिया इस तरीके से। अब ये बचा लास्ट 1, ठीक है, तो इसको तुम क्या करोगे, अब इसको आगे नहीं, ये जो लोअर बाइट्स हैं तो इनको आप किस साइड स्टोर करोगे, ये 1, तो यहाँ पे आएंगे 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ऐसे स्टोर होता है, ये चलेंगे, ये आपके पहले स्टोर होंगे, ठीक है। जस्ट 0, ये आपका पहले स्टोर होगा और वो आपका बाद में स्टोर होगा। जस्ट मैंने, हाँ ठीक। तो अब हमको उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टू बाइनरी। अब नाउ ये कह रहा है ptr+1। अब ptr+1 का मतलब क्या होगा, ये आपकी एक बाइट ptr इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर +1 करूंगा तो बिकॉज ptr में किसका एड्रेस है, ए का, उसको मैंने टाइप कास्ट किया कैर पॉइंटर में, तो अगर मैं +1 करूंगा तो एक बाइट का जंप ओवर ये यहाँ से सीधा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब मेरे को इसकी वैल्यू स्टार लगा के मेरे को इसकी वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या है, और तुम्हें पता है इसकी वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट 1। ये क्या प्रिंट करेगा, सिंपली 1 प्रिंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो 320 का बाइनरी निकाला, तो ऊपर की 8 बिट्स उनको पहले लिखा, बाकी की बिट्स को आपने बाद में लिखा, और ये इस तरीके से ही स्टोर होगा। 1 यहाँ पे है तो आप यहाँ पे लोगे 1 को, और फिर ये 7 zeros आ गए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ptr+1, बिकॉज ptr आपका कैर पॉइंटर है। अगर आप उसमें +1 करते हो तो +1 करते ही, क्योंकि एक बाइट का ही जंप होगा, बिकॉज एक बाइट को पॉइंट कर यानी 8 बिट, +1 करोगे तो कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट बाइट पे जाएगा, और तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1, तो आंसर है 1, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।